as we come for the meetings, we can encourage one another. और जैसे कि हम सभा में आए हैं, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित जरूर करेंगे. So it's not just come to listen to one person, but brothers and sisters, whatever is in your heart, what God has encouraged you, what God has spoken to you, you can always share something. जो भी प्रभु आपको प्रोत्साहित करते हैं, प्रभु आपसे बात करते हैं, आपको अवश्य है कि उसको जरूर बांटें. If you have a song in your heart, you can always suggest it and send it to me. So we can also put it on the list so that song has encouraged you. It will encourage others also. और कोई भी गीत है अगर आपने सुना है तो दूसरों को भी इसके द्वारा आशीषित कर सकते हैं, ग्रुप पर डाल सकते हैं ताकि दूसरे सुनकर आशीषित हो. For example, that song called "Just a Closer Walk with Thee" was an old song in English that we used to sing. और जैसे कि अभी हमने गीत गाया है कि बहुत ही करीबी चाल हमें चलनी है, प्रभु के साथ बहुत ही करीब से चलना है, और ये कोई पुराना गीत है जो आपने अभी गाया है. I got reminded of it when I was walking on the road today in the evening, so in the morning. So the Lord just brought it to my mind that's beautiful prayer, and that's why I just put that, and I was singing it, and then God told me also to share it in the meeting. और जब मैं रास्ते में सुबह जा रहा था तब मुझे ये गीत याद आया, और तब फिर मैंने उसको सुना, और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि ये यहाँ पर डालना चाहिए ताकि दूसरे भी इसे सुनकर आशीषित हों. It's a very beautiful song. I'll put it on the group so that all of you all can, those who do not know, can learn it and sing it along. और ये बहुत ही सुंदर गीत है और आप सुन सकते हैं. यदि आपको नहीं आता तो आप याद कर सकते हैं और उसको गा सकते हैं बार बार. So the Lord and Holy Spirit encourages us through the Word of God and also through songs which are based on the Word of God. और पवित्र आत्मा में प्रोत्साहित करता है परमेश्वर के वचन से और उन गीतों से जो उसके वचनों के द्वारा बनाए गए हैं. And also through prayer, when somebody prays, sometimes that also touches us. The Holy Spirit will speak to us. और प्रार्थनाओं के द्वारा भी यदि कोई जब प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा उसके द्वारा भी हमें छू सकते हैं. So that is why it says in Hebrews chapter 3. इसी कारण इब्रानियों के 3 अध्याय में लिखा है, verse 12. 12 वचन. Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart in falling away from the living God, but encourage one another day after day, as long as it is called today, lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. हे भाइयों चौकस रहो. Yes. इब्रानियों 3 और 12 और 13 वचन. हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हट जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए. So the apostle tells us, take care, brothers. और प्रेरित यहाँ पर कह रहे हैं कि ख्याल रखो भाइयों. That in any of you, all of us sitting here, any of us, an unbelieving and an evil heart can come. और हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें एक अविश्वास का आत्मा और एक कठोर आत्मा आ सकता है. So it is possible that we can fall away from the living God. और ये बिल्कुल मुमकिन है कि हम परमेश्वर से, जो जीवित परमेश्वर है, उससे दूर हो जाएं. If we are not careful and we run after all earthly things, then we go away from God. यदि हम सावधान नहीं हैं और हम संसार की चीजों के पीछे भाग रहे हैं तो हम प्रभु से दूर हट जाएंगे. Then we can also become like the unbelievers. फिर हम भी अविश्वासियों के समान ही हो जाएंगे. That is why so many examples are given in the Old Testament about how people fell away from the Lord. और इसलिए पुराने नियम में कई सारे उदाहरण हैं कि कैसे लोग परमेश्वर से दूर हट गए थे, गिर गए थे. So we know that the children of Israel came from Egypt to the promised land, but only 2 of them could enter the promised land. और हम जानते हैं कि जो इजराइल के जन थे वो मिस्र से वाचा के देश में पहुंचे थे, पर नहीं पहुंच पाए थे, सिर्फ 2 ही पहुंच पाए थे. All the people about 20 years were busy grumbling and busy, their mind was on earthly things. और बहुत सारे जो लोग थे उनका सिर्फ दिमाग व्यस्त था दूसरों की बातें सुनने में और गलत बातें करने में. Only Joshua and Caleb entered the promised land. सिर्फ यहोशू और कालेब जो थे वो वाचा के देश में पहुंचे थे. Moses also could not enter because he lost his temper on the children of because of the bad behavior. He lost his temper on the people.
मूसा भी नहीं पहुंचा था क्योंकि उसके गुस्से के कारण उसने अपना आपा खो दिया था और वो गुस्सा कर लिया था उसने। But God loved Moses very much. पर मूसा से प्रभु बहुत प्रेम रखते हैं। So, so we see that, God doesn't want us to go into sin and have an evil, unbelieving heart. और प्रभु नहीं चाहते हैं कि हम कोई बुरी आत्मा में या बुरे काम करें और अविश्वास का आत्मा हमारे अंदर आए। Why is that unbelieving heart very evil? क्यों एक अविश्वास का आत्मा बहुत ही बुरा होता है? That we feel that what God has said, He is not doing. और हम ऐसा समझते हैं कि जो प्रभु कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं। We are saying, God, whatever you have said is not true, and you are a liar. और हम ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, आप झूठे हैं। That is a terrible insult to God, who is always the truth and is always full of love. और ये बहुत ज्यादा अपमान है परमेश्वर का, हमें अपने हृदय में बहुत सारा विश्वास और प्रेम रखना है। So when we go through a lot of troubles and problems in our life, we must never doubt God. Say, God is your good. You are showing me something in my life that I want to change. जब भी आप अपने जीवन में कुछ दुख तकलीफें परेशानियां देखें तो कहें कि कोई बात नहीं है प्रभु, ये सब मेरे भले के लिए है, मुझे बदलने के लिए है। When Lazarus died and for 4 days he was in the grave, and Jesus told them to remove the stone. और जब लाजर का मर गया था तब उसको कब्र में रखा गया था और फिर प्रभु ने कहा कि वहां से पत्थर को हटाया जाए। And Martha said, Lord, if we remove the stone, such a bad smell will come out. फिर मार्था ने कहा यदि पत्थर को हटाया जाएगा तो बहुत ही गंदी दुर्गंध आएगी उसमें से। And then what did Jesus say? फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? It says in John chapter 11, यूहन्ना के 11 अध्याय में verse 40. 14 वचन। Did I not say to you that if you believe, you will see the glory of God? ब्रदर वर्स 40 40 John chapter 11 verse 40. यूहन्ना 11:40. यूहन्ना 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Yes, God wants His glory to be seen in our lives every day, through every situation, every problem that comes in my life. परमेश्वर अपना अनुग्रह हम पर करना चाहता है हर एक परिस्थिति में, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु हम पर करना चाहते हैं। We often think why this problem has come in the first place. और हम ऐसा सोचते हैं कि क्यों ये जो तकलीफ है मेरे जीवन में आई है। That is our first reaction. ये हमारा पहला बर्ताव रहता है, सबसे पहला। That is what the disciples also asked Jesus when they saw the blind man. और ऐसा ही जब अंधे व्यक्ति को देखा गया था तो प्रेरितों ने यही पूछा था यीशु मसीह से, Who did this sin, whether this person is born blind? Did the parents sin or did the child sin? ये अंधा जन्मा है तो किसने पाप किया है? क्या इसने पाप किया है कि इसके माता पिता ने पाप किया है? Then Jesus said in John chapter 9 verse 3. फिर यीशु मसीह ने यूहन्ना 9 और उसके 3 वचन में कहा, Jesus answered, it is neither this man's sin nor his parents, but in order that the works of God may be displayed in him. यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो। So the problems in our life, the difficulties and the challenges that we face is for that the works of God, the glory of God will be seen in my life and your life. जो भी दुख तकलीफ परेशानियां रुकावटें दिक्कत जो आपके जीवन में आती है वो सब परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए हमारे जीवन में। Sometimes we don't understand why things are happening. हम बहुत बार नहीं समझ पाते हैं कि क्यों हमारे साथ ये सब घट रहा है। God doesn't tell us also. और प्रभु हमें बताते भी नहीं है। There's a song that in English we sing, I don't need to understand, but I just need to hold his hand. और एक अंग्रेजी में एक गीत है कि मैं समझना नहीं चाहता हूँ, बस उसके हाथ को थामे रहना चाहता हूँ। So all the time we must be close to the Lord and we must wait till the Lord, we must put our problems on him and he will do the things right and he will change our life and character and he can change the situations also in his time.
और हर समय हम प्रभु के साथ रह सकते हैं, उसके हाथ को थामे रह सकते हैं, और वही हमारे जीवन की सारी दुख तकलीफ परेशानियों को बदलने के लिए सामर्थ्य रखता है। See, in our life, we would just want a life full of peace and no problems, and a very happy life. We don't want any troubles and problems in our life. और हम हमारे जीवन में हम ये चाहते हैं कि बस शांति से चलता रहे, कोई दिक्कत मुसीबतें ना आए, कोई परेशानी हम हमारे जीवन में नहीं चाहते। But the Lord says, without that, you will never, without these trials and problems, you will never prosper in your spiritual life. और प्रभु बस कहते हैं कि तुम अगर यदि इन रुकावटों से, परेशानियों से लेकर कर नहीं गुजरोगे तो तुम वहीं रुक जाओगे, जय नहीं पाओगे। So that is why all of us have got lots of problems. Each one of us, God has allowed so many problems in our life according to our ability to bear. और हम में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, जितना हम सहन कर सकते हैं प्रभु ने हमारे जीवन में अनुमति दी है आने की। So that through these problems we can draw near to God and hold His hand and get eternal glory. और इसी के इन परेशानियों के द्वारा ही हम प्रभु के करीब आएंगे, उसके हाथ को थामेंगे और उसका अनुग्रह हम पर होगा। Sometimes we can get discouraged. बहुत सारी बार हम निराश हो जाते हैं। So why this is happening? I'm feeling so heavy. क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों ये भारीपन है मेरे साथ। But the Holy Spirit will encourage us through the Word of God. और फिर पवित्र आत्मा हमें उनके वचन, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करते हैं। And also when we come to the church, we hear the encouraging words from the Word of God. और जब भी हम कलीसिया में आते हैं तो यहाँ पर भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिलता है। Verse 13 says, always encourage one another. और 13 वचन कहता है कि हमेशा एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहिए। Hebrews chapter 3 verse 13. इब्रानियों के 3 उसके 13 वचन में। And how often should we encourage one another? और कैसे हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए? Day after day, that means daily. दिन पर दिन मतलब रोज रोज। As long as it is called today. और जब तक आज का दिन नहीं कहा जाता तब तक। So today is the day the Lord has made. Today is the day of salvation. आज ही का दिन है जो प्रभु ने बनाया है, आज ही का दिन है जो उद्धार का दिन है। Today is a day full of problems. Today is the day I must trust in God. आज ही वो परेशानियों का दिन भी है और आज ही वो दिन है जहाँ पर परमेश्वर पे विश्वास रखना है। I must look to Jesus and Jesus will do the glorious work in my life. और मैं प्रभु को देखूंगा और परमेश्वर का अनुग्रह और दया मुझ पर होगी। He will remove my fear away from my life. हर एक प्रकार का डर प्रभु ही मेरे जीवन से दूर कर देंगे। When the problem comes first, suddenly fear comes into our life. और जैसे ही परेशानी आती है तो सबसे पहले डर आ जाता है। And we think, now what will happen? और फिर हम सोचते हैं अब क्या होगा। That is what the disciples also felt. और ऐसे ही प्रेरितों ने भी सोचा था। Whenever they are going on the boat in the Sea of Galilee, suddenly a storm came. और जब वो जहाज पर जा रहे थे नाव में, तो एकदम से तूफान आया। And they got so frightened, they think that they are all going to die. और वो डरने लग गए और सोचा कि हम तो मर जाएंगे। But then when Jesus came and Jesus was in the boat, they told Jesus, Lord, please help us. और यीशु मसीह भी उसी नाव पर थे और उन्होंने प्रभु को, यीशु मसीह को पुकारा कि हमारी मदद कर। God knows He allows the storms to come in our life. और प्रभु तो जानते थे क्योंकि वो तूफान को प्रभु ने ही अनुमति दी थी आने के लिए। So that's why when we go through so many storms in our life, we can encourage other people who also go through storms in their life. और हमें भी उन तूफानों से गुजरना होगा और बहुत सारी तूफान परेशानी हमारे जीवन में आएगी। So we can encourage others also when they go through the different problems in life. और हम इसी तरीके से दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जब वो इन तूफानों में से होकर चलेंगे। Tell them, always think about the Lord and think of that God will never forsake you and never leave you. हमेशा प्रभु के प्रेम के बारे में बताते रहें और कहें कि प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। Why should we say this? हमें क्यों कहना चाहिए ऐसा? Because in our problems in life, there is a possibility that we may lose our faith and go back and become backslidden. और क्योंकि परेशानियों में बहुत संभव होता है कि लोग जो विश्वासी है वो पीछे हट जाएं और प्रभु से दूर चले जाएं।
We say, where is God? Where is God is not helping me in my job. God is not helping me in my future. God is not allowed this sickness to come. What shall I do? और फिर जब वो पीछे हट जाएंगे तो कहने लगेंगे, कहाँ है प्रभु, कहाँ है, क्या वो मेरी मदद नहीं करेंगे, मेरी नौकरी में क्या मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं क्यों इन सब चीजों में फंस गया हूँ। It says it takes one day for you to backslide. और ऐसा कहा जाता है कि एक दिन बहुत होता है पीछे हटने के लिए। That is why if you are not fresh every day, we can go back and then fall into sin. यदि आप रोज के रोज तरोताजा नहीं होते हैं प्रभु के द्वारा तो आप पीछे हट सकते हैं। That is why it is required to read the word of God, think about the word of God, and we meet, we must always talk to each other about the word of God. और इसलिए जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें और उसी के द्वारा बातचीत भी करें। And on Sunday we saw the Apostle Paul, whenever he was called to talk, he was always discuss about the scripture and about his personal life. और रविवार की सभा में हमने देखा था कि प्रेरित पौलुस के बारे में जब भी वो बातचीत करते थे तो परमेश्वर की महिमा के बारे में उसके काम को बताते रहते थे। So always, whatever we discuss, we must discuss as far as what is important from this from God's point of view. और जब भी हम चर्चा करें तो इसी बात पर चर्चा करें कि प्रभु की बातें करें और उनकी नजरों में क्या अच्छा है वो बातें करें। We saw that verse. We look at it again in Acts chapter 24, verse 25. और प्रेरितों के काम 24 उसके 25 वचन में हम देखेंगे। And as he was discussing righteousness, self-control, and judgment to come, Felix became frightened and said to him, "Go away for the present time. I will summon you later." और 25 वचन, और जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता था तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया कि अभी तो तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। So the Apostle Paul was always discussing about how to do the right thing, how to have self-control, and no, Jesus, God is going to come and judge you one day. All these are the main topics of his discussion. और प्रेरित पौलुस यही महत्वपूर्ण बातों पर ही चर्चा करते थे कि कैसे प्रभु के साथ सही चलना है और न्याय के दिन जब होगा जब उसके लिए कैसे तैयार होना है। Because he was always walking with God. क्योंकि वो हमेशा ही प्रभु के साथ चलते थे। So always he was talking about Jesus and the eternal judgment and how to have self-control and how to do the right thing. और हमेशा वो इसी की बात की चर्चा करते थे कि कैसे खुद पर संयम रखें, कैसे सही काम को करें और न्याय के दिन के लिए कैसे तैयार हों। So this is also we also should always discuss with our friends and relatives and our believers about doing the things that are right, about self-control and about the coming judgment. और इसलिए हम भी जब किसी से मिलते हैं, हमारे रिश्तेदारों से, दोस्तों से, परिवार में किसी से भी या किसी भी जन से, तो हमें यही कहना है कि क्या सही है, न्याय के दिन की बात उनको बतानी है कि क्या कैसे तैयार होना है और प्रभु के सामने अच्छे से कैसे जीना है। So Felix had an opportunity to change his life, but he said, "No, I don't want to hear this now. Do you go back?" And he wanted more he loved money very much. He didn't want to give up the love of money. और फेलिक्स के पास अवसर था कि वो अपने जीवन को बदल सकता था, पर उसने कहा नहीं, तुम अभी यहाँ से जाओ, क्योंकि उसको पैसों से प्रेम था, इसलिए वो नहीं सुन पाया। So many believers also backslide because they don't listen to the voice of God. बहुत सारे विश्वासी पीछे हट गए हैं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते। In Hebrews it says, "Today if you hear the voice of God, do not harden your heart." और इब्रानियों में कहता है वचन कि यदि आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। So many people harden their heart. बहुत सारे लोगों ने अपने मन को कठोर करके रखा है। Because when the word of God speaks to you, it will tell you to change. और कि जब परमेश्वर का वचन उनको सुनाया जाए तो वो बदल ना जाए। No, the word of God wants us, every person, to change. हाँ, प्रभु का वचन जो है हम में से हर एक को बदलना चाहता है। And people don't like to change. और लोगों को पसंद नहीं है बदलना। And because of that, they choose their own way and they go far away from God and they go to hell. और इसलिए वो अपने ही मार्ग पर चले जाते हैं, अपनी ही इच्छाओं में, और फिर नरक चले जाते हैं एक दिन। So when we hear of God, we have to humble ourselves and do the thing that is right and obey the word of God.
और जब हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के लिए परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बने और परमेश्वर की नजरों के सामने जो कुछ अच्छा है वही करें and allow the word of God to change us and change our lifestyle. और प्रभु को वचन को अनुमति दें कि हमारे जीवन शैली को बदले, हमारे जीवन के हमारे हृदय को बदले। I had an auntie of mine. सॉरी ब्रदर। I had an auntie, my auntie. हाँ, एक आंटी थी। She was my auntie. और वो मेरी एक आंटी थी। And she said, "See, I don't want to come to the meeting because when I come to the meetings, I get very convicted about my sin." और उन्होंने कहा कि मैं कलीसिया में नहीं आना चाहती क्योंकि जब मैं कलीसिया में आती हूँ वचन सुनाए जाते हैं और मुझे पाप के ऊपर बहुत ही गंभीरता, बहुत ही शर्म महसूस होती है। And I get very guilty. और बहुत ही शर्मनाक महसूस होता है। So I will not come for the meetings. इसलिए मैं नहीं आऊंगी सभा में। And then she took that decision, and her life became worse and worse. और उन्होंने ये निर्णय लिया और उनका जीवन बद से बदतर होता गया। So that is what happens to people when they ignore the word of God, they don't hear the word of God, it becomes worse and worse. और यही होता है जो नजरअंदाज कर देते हैं परमेश्वर के वचन को, उनकी जो हालात है वो बद से बदतर होते जाते हैं। That is why we must always go to a meeting where we get encouragement and correction. और हमें उन सभाओं में जाना चाहिए जहां पर हमें प्रोत्साहन मिलता है और सुधार मिलता है। Most churches you go, we don't hear the living word of God, and we just go and come back. People go and come back and they do not change at all. और बहुत सारी सभा कलीसिया ऐसी होती है जहाँ पर जीवित परमेश्वर का जीवित जो वचन है वो नहीं सुनाया जाता है, हम बस जाते हैं और वापस लौट कर आ जाते हैं। So, but the word, when God is there, Jesus is there in a meeting, you cannot hide. और जब यीशु मसीह स्वयं उस सभा में होंगे तो आप छिप नहीं पाएंगे। God, all our inner life is open before God. और हमारा जो अंदरूनी जीवन है वो प्रभु के सामने बिल्कुल खुला है। So the Lord encourages us and corrects us. और प्रभु हमें सही भी करेंगे और हमें प्रोत्साहित भी करेंगे। So that is the function of in the church. We must hear the word of God and discuss the word of God. और यही बात होती है सभा में कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें और परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रोत्साहित हों। 1 Thessalonians chapter 5 verse 14. पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 14 वचन। He says, "And we urge you, brothers, admonish the unruly, encourage the faint-hearted, help the weak, and be patient with all men." क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं। नहीं 1 Thessalonians chapter 5 हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 14 वचन। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबकी और सहनशीलता दिखाओ। Yeah. So we have to admonish or sometimes warn the people who are not disciplined at all. और हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है और सहनशीलता दिखानी पड़ती है लोगों के प्रति। Last time we saw that if we are doing don't have good habits, then we can just even tell them, brother, sister, this is not the good habits that you are having. You must correct your ways and be disciplined. कई बार किसी भाई या बहन में कुछ गलत आदतें रहती हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि ये गलत है, आपको नहीं करना चाहिए। So then that person can change. और उसके कारण जो है वो व्यक्ति बदल सकता है। Then we have to encourage the people who are faint-hearted or who are it says who get very discouraged very quickly. और हमें उन लोगों को समझाना चाहिए जो बार-बार निराशा में पड़ जाते हैं। So we have to encourage them. तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए उनको। What is the meaning of encourage? और प्रोत्साहन देने का क्या मतलब है? It is tell the brother and sister, have courage, have faith in God. I mean, you must go press on. Definitely God will help you. और उसको ये कहना कि साहस रखो, कोई बात नहीं है, प्रभु आपके साथ है, ढांढस बांधो, पीछे नहीं हटना है। It comes from the word courage. और ये जो है साहस
ये जो करेज Yes. ये वर्ड से आया है। So don't give up. Stand and fight. हियाव न छोड़े, खड़े होइए और लड़िए। The encourage means keep on telling them, keep on telling, have courage, brother, have courage, sister. और प्रोत्साहन देने का मतलब है कि उसको प्रोत्साहित करते रहिए कि साहस रखो, कोई बात नहीं है, उठो और चलो प्रभु के पीछे। And in the church, we have to help the weak. और इस कलीसिया में हमें जो कमजोर है उनकी सहायता करनी है। They are so weak that they fall into sin many times. और बहुत कमजोर हो जाते हैं, वो कई बार पाप में पड़ जाते हैं। Every time getting irritated, every time getting angry. हर बार चिड़चिड़ापन और बहुत बार उनके जीवन में गुस्सा करते रहते हैं। So we have to tell them, brother, sister, don't get irritated, don't get angry. God is there to help you. Just ask God to help you. He will definitely help you. और हमें कहना है, भाई बहन चिंता मत कीजिए, चिड़चिड़ाहट मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, निश्चित रूप से प्रभु आपकी सहायता करेंगे। When you are angry, don't talk much. जब आप गुस्सा हो तो ज्यादा बात ना करें। Better to talk less, because if you talk less, you will sin less. बेहतर होगा कि आप कम बोलें, क्योंकि कम बोलेंगे तो पाप भी कम करेंगे। Then at least you can think on what to say. और फिर आप सोच पाएंगे उस बारे में कि आपको क्या कहना चाहिए। There are so many brothers and sisters who are very weak. बहुत सारे भाई और बहन होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं। So we have to just help them and encourage them. और हमें उनकी सहायता करनी है, हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है। And we have to be patient with all men. और हमें सभी के साथ शांति रखनी है। Patient means we have to bear up with everybody. संयम, हाँ, Yeah. सबको सह लेना है, सबके साथ संयम रखना है। Because we also went through all these problems in our life. क्योंकि हम भी इन्हीं सब परेशानियों से गुजरे हैं हमारे जीवन में। So we have to, all of us have got problems, all of us have got weaknesses, sin. So gently we have to, when we come for the meetings, when we talk to each other, we have to encourage one another. हम सबके जीवन में परेशानियां हैं, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी कमी घटी हो सकती है, पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है और मिलना है एक दूसरे से। So many times we have failed the Lord. बहुत सारी बार हम हार जाते हैं। No, we have fallen into sin and disappointed the Lord. हाँ, बहुत सारी बार हम पाप में गिरकर प्रभु को निराश कर देते हैं। And made God very sad. और प्रभु को निराश कर देते हैं, दुखी कर देते हैं। So that is why we must we can feel for other people and also tell them, brother, sister, I also have made a lot of mistakes. So you also trust in God and ask God to help you. Definitely God will help you. और इसी के द्वारा हम सिखा सकते हैं कि भाई या बहन में भी हम भी इस परीक्षा में से गुजरे हैं, इसलिए परमेश्वर पे विश्वास रखिए, उसको निराश मत कीजिए। Then we tell other brothers and sisters, brother, sister, read the word of God. Don't neglect the word of God. और हम कह सकते हैं, भाई बहन आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। Because if you don't read the word of God, you don't get spiritual food, then you will fall into sin. और यदि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा, फिर आप गिर जाएंगे पाप में। And if you don't pray and ask, thank God, then you will not have the power of God in your life. और यदि प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करेंगे, तो वो सामर्थ को कैसे आप पा पाएंगे। And if you sin, always go to God and ask forgiveness and humble yourself and ask Him to help you, and He will help you. जब आप पाप करते हैं तो तुरंत प्रभु के पास जाइए और माफी मांगिए, और यदि आप उससे सहायता मांगेंगे तो वो देंगे। And obey the Lord step by step every day. और स्तर ब स्तर परमेश्वर की आज्ञा का पालन कीजिए। Go and ask forgiveness when you find it difficult. और जब परेशानी या बहुत ही मुश्किलात हो तो परमेश्वर से माफी मांगिए। And ask forgiveness from people also. और लोगों से भी माफी मांगिए। And then you see your spiritual life all the bondages in your life will be broken. और फिर हम देखेंगे हमारा आत्मिक जीवन, बहुत सारी बाधाएं जो होगी वो खत्म हो जाएगी। So we have come for the meetings not to hear sermons but to change our life. और हम सिर्फ सभा में वचनों को सुनने के लिए और सरमन को सुनने के लिए नहीं आते हैं, हमारे जीवन बदलने के लिए। So as God changes our life, we also can share the word of God which has changed our life and encourage our brothers and sisters in Christ. और जैसा कि हमारा जीवन बदला है तो उसी प्रकार हम दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो भाई बहन यहाँ पर हमारे सभा में हैं।
And also for unbelievers, we can tell them, see, God has changed my life so much. All my life earlier was full of discouragement and hatred and anger. Now God has changed me. और ऐसे ही अविश्वासियों के साथ भी हम साझा कर सकते हैं कि कैसे थे हम, कैसे गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ाहट हमारे अंदर थी, देखो प्रभु ने हमें बदल दिया है। Now I've got a clear conscience, and if I die today, I'll go to heaven. और अब मेरा विवेक जो है वो शुद्ध है, और आज मर जाऊं तो प्रभु के पास स्वर्ग में जाऊंगा। So praise God, and this is the way we can open our mouths both to believers as to unbelievers. और प्रभु का धन्यवाद और स्तुति हो कि हम अपने मुंह को विश्वासियों के सामने भी और अविश्वासियों के सामने भी, दोनों के सामने खोल सकते हैं। We can say, yes, I've got many weaknesses, but God is helping me. हम कह सकते हैं, हाँ मेरे अंदर कमी घटी है, पाप है, पर परमेश्वर मुझे बदलेंगे। Yes, He's changing my life हाँ वो मुझे बदल रहे हैं, from earthly things to heavenly things. वो मुझे पृथ्वी पर की चीजों से स्वर्गीय वस्तु की ओर ले जा रहे हैं। Earlier, my mind was only on earthly problems and earthly longings. Now, my God is changing me from earthly things to heavenly things. पहले जो मेरा हृदय, दिमाग, मन, बुद्धि सब कुछ पृथ्वी पर की चीजों के लिए था, पर अब तो प्रभु मुझे स्वर्गीय वस्तु की ओर मेरा ध्यान ले जा रहे हैं। So now I want all people to come to know Jesus Christ, and my life also I want to press on, and I want to be free from every sin and be more full of joy and peace and love in my heart. और प्रभु के और परिपक्वता की ओर मैं बढ़ते जा रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे पाप से आजाद किया है, और अब और शांति, आनंद और प्रेम मेरे जीवन में आता जा रहा है। So, my dear brothers and sisters, God is always speaking to us through all our situations in life to change us and to encourage us. और इसलिए भाइयों बहनों, हर एक परिस्थिति में प्रभु हमसे बात करते हैं, हमें बदलने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए। So now we have an opportunity to share the word of God, whatever God has done in our life. Something or the other God will always tell us. So, and we can encourage our brothers and sisters in the church. और भाइयों बहनों, अब हमारे पास अवसर है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। कुछ ऐसी बातें होती है जो प्रभु हमसे करते हैं, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करके हम विश्वास को बढ़ा सकते हैं। Anybody can start. Brother Ratnaswamy has gone to the village, so he cannot join. So anybody can start. कोई भी शुरू कर सकते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुंदर विशेष के लिए। जॉर्ज थॉमस को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे लिए परिश्रम करते हैं, तो वो जो हमें भी प्रोत्साहन करते हैं दिन प्रतिदिन हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए। प्रभु ने उन्हें चुना है। तो जैसे कि ब्रदर को भी परमेश्वर आशीष करे, उनके परिवारों में आशीष करे। जैसे कि आज का वचन ने छुआ है मुझे भी, जैसे कि हमने पढ़ा था इब्रानियों का पुस्तक से 3 अध्याय का 12 और 13 पद। 12 में लिखा था कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। तो 12 और 13 में तो हर दिन हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करना जरूरी है, जैसे कि ब्रदर ने कहा है, क्योंकि आगे का वचन मैं और 2 वचन पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का पुस्तक से ही 10 अध्याय का 24, 25, 26 में पढ़ना चाहता हूँ। हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24, 24 में लिखा है, क्योंकि 24 यस। और हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 24 24 में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। 25 में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो
उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक यह किया करो। 26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान नहीं। तो इस वचन से यही मिला है कि शिक्षा ये प्रोत्साहन करने का वजह क्या है। तो प्रोत्साहन करने का वजह यही है कि जो डिसेप्शन, जो भी भरमाहट, जो भी चीजें जो होती है जो परमेश्वर से हमें अलग करता है, वो बहुत भयानक है। क्योंकि हमारे लिए दूसरा और कोई बलिदान नहीं है। सृष्टि की शुरुआत से अभी तक केवल एक ही प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर ने जो हमारे पापों की बलिदान के लिए भेजा है। तो दूसरा और कोई बलिदान नहीं है। तो इसी का 31वां पद में लिखा है कि जीवते परमेश्वर का हाथ में पड़ना बहुत भयंकर बात है। तो कोई भी जिसमें पवित्र आत्मा दिया है परमेश्वर ने, जितने भाई बहन हम लोगों में, तो हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कोई भी एक भाई बहन नाश हो या उस न्याय में पड़े। बल्कि तो इसलिए हम लोग को परमेश्वर ने वो बोझ दिया है, बर्डन दिया है कि हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन करते रहे, कि ये सोच के कि कोई भी एक नाश ना हो। पर ये जो है हमारे हृदय में जो दिया है वो हमारी ओर से नहीं। किसी को हम अच्छा लगता है, किसी को हम एडमायर करते हैं, ये बोल के नहीं, पर परमेश्वर का प्रेम हम में है। इसलिए हम हर एक को चाहते हैं कि हर एक को जीवन मिले। जैसे कि हम जो जिस उद्धार और जो आनंद को जो अनुभव करते हैं, तो हर एक भाई, हर एक बहन वो चीज को अनुभव करे और प्रभु की महिमा करते हुए जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे और आगे बढ़ते जाए। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैंने रिसेंटली वापस एक डिसीजन सोचा प्रभु के लिए कि मैं अपना लाइफ प्रभु को वापस रिडेडिकेट करूंगा और प्रभु को ज्यादा और जानूंगा, मोर डिसिप्लिन्ड वे में। तो आज मैंने शुरू किया, कल भी किया, आज भी किया। सुबह थोड़ा उठ के जल्दी प्रेयर किया, फिर बाइबल स्टडी किया और मेरे पास मोबाइल पे मैं बाइबल पढ़ता हूँ। और यूजुअली क्या होता है, जब मैं काम करने लग जाता हूँ वर्क फ्रॉम होम, तब मैं सुनते सुनते बाइबल मैं अपना मेल सब चेक करता हूँ। लेकिन आज मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं सुबह उठा और मैंने मोबाइल बाइबल पढ़ा भी और सुना भी साथ में सेम टाइम पे। कुछ थिंग्स मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि कुछ काम था, लेकिन जो न्यू कवनेंट, न्यू टेस्टामेंट मैं पढ़ रहा था और सुन रहा था साथ में, तो मुझे काफी एनकरेजमेंट मिला और उससे मुझे मेरा दिन काफी अच्छा गया मेरे गॉड की ग्रेस से। जो मैं काम कर रहा था कंप्यूटर पे, मेरे को एकदम पीस था, लव था, जॉय था। तो मैंने कल भी किया था, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। ऐसे एक काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, ग्रेस से मालूम पड़ा मुझे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम प्रेयर और बाइबल स्टडी करने से अपना ग्रेस आता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेयर एंड बाइबल स्टडी, लेकिन जब हम अपना वचन निभाते हैं, जब हम प्रभु को समय देते हैं, तो तभी हमें प्रभु भी हमें हमारे साथ रहता है हमेशा हमेशा, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द लाइफ। वैसा तो जब प्रभु हमारे साथ है तो तब प्रभु हमें अनुग्रह देता है दूसरे काम करने के लिए। जिस दिया ना फिलिपियंस 2:13 में, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट जीसस व्हिच स्ट्रेंथेन्स मी, हु स्ट्रेंथेन्स मी। तो मैं आप लोगों से, आप मेरे भाइयों बहनों से, जिनको भी मेरे लिए बर्डन है, प्लीज प्रे करने बोलिए, प्रे किए मेरे लिए। मुझे याद रखिए जब आप मेरे प्रेयर में हो, और मुझे प्रभु में बढ़ने के लिए मतलब मुझे प्रेयर करें मेरे फैमिली के लिए। प्रेज गॉड, थैंक यू। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कुछ वचन से मैं भी प्रोत्साहन पाया, तो उसके लिए शेयर करना चाहूँगा। एक्सोडस निर्गमन चैप्टर 20 में 20 मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करो। तो ये वचन से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि परमेश्वर का भय मेरे जीवन में हर दिन बने रहना चाहिए और उनके साथ साथ चलना चाहिए। और
तुम्हारे मन में उनका भय तुम्हारे मन में बना रहे। तो जब भी मैं परमेश्वर के साथ भय में चलता हूँ तो बहुत ही प्रभु के करीब मैं आ जाता हूँ, और परमेश्वर के साथ मुझे बहुत आनंद और शांति मिलता है। जैसे ब्रदर बता रहे थे कि अनबिलीविंग हार्ट, तो अविश्वास जैसे इसके बारे में मुझे भी याद आ रहा था सूबेदार के बारे में। सूबेदार जब उसका सेवक बीमार हो गया था, तो उसका दिल कितना नम्र था। प्रभु से कहा, प्रभु आप खाली आप कह दीजिए वचन, आप बोल दीजिए तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। तो प्रभु बहुत ही वहां पे बताया कि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। तो उन्होंने कहा, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। तो इससे भी मुझे प्रोत्साहन हुआ कि परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हमें हमें हमारा विश्वास बहुत ही मजबूत रहे प्रभु के ऊपर। और उसके बाद प्रभु ने कुछ एक वचन कहा था, उसके द्वारा भी मुझे प्रोत्साहन हुआ कि पूर्व पश्चिम से सब लोग प्रभु में आएंगे, लेकिन राज्य के संतान जो है बाहर डाल दिए जाएंगे। तो इससे बहुत मुझे प्रभु डर देते हैं कि हर दिन प्रभु के साथ साथ चलते रहना। जैसे हमें 2 तिमोथी में भी लिखा है 2:19 में भी, वहाँ कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उसको पहचानते हैं। मतलब वहाँ पे लिखा है कि जो प्रभु से प्रेम करते हैं वो दुष्टता से बचे रहें। और उसके आगे तिमुथी में भी पौल के बारे में भी हम जानते हैं, ये वचन तो हम लोग सब जानते हैं, 2 तिमुथी 4:7-8, कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है, विश्वास की मैंने रखवाली किया है। तो भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा गया है, और मेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। ये वचन से भी मुझे प्रोत्साहन हुआ कि विश्वास की मुझे हर दिन रखवाली करना चाहिए, चाहे कोई परिस्थिति क्यों ना हो सकता है अचानक भी ट्रबल्स आएंगे, कभी प्रॉब्लम्स नहीं भी रहेंगे, फिर भी प्रभु कहते हैं कि हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि हम ये भी जानते पुराना नियम में डैनियल के बारे में कि वो दिन भर 3 बार प्रार्थना करता था। मतलब उसको बहुत सारे लोग डिस्टर्ब करते थे, या बहुत सारे लोग उसका बुरा प्लान बना के उसको प्रार्थना को रोकना चाहते थे, लेकिन डैनियल बहुत खड़ा रहा, प्रभु को धन्यवाद देता था। तो ये सब बातों से मुझे प्रोत्साहन मिल रहा था कि हर दिन प्रभु के साथ करीबी से चलना है और विश्वास की रखवाली करना है। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। Hallelujah. मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और जैसे कि अभी हमने वचन में सीखा है कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो हमें मतलब बिल्कुल हाँ, क्योंकि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम में से किसी के भी द्वारा किसी को भी प्रोत्साहित करवा सकता है और किसी का भी जीवन बदल सकता है। और जब मैं पढ़ रही थी कल मैंने पढ़ा था प्रेरितों के काम 27 अध्याय जब मैं पढ़ रही थी, और यहाँ पर पौलुस जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में है, एक जहाज पर है जो मतलब उछल रहा है पानी में, और लोगों को बहुत डर है जो उसमें है, बहुत सारे लोग, कुछ 200 से ऊपर लोग इसके ऊपर थे। और यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम 27 उसका 21 वचन में, एक मिनट, हाँ, जब वे बहुत उपवास कर चुके तो पौलुस ने उसके बीच में खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते, न यह विपत्ति और हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढांढस बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसने उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हे पौलुस, मत डर। और आगे बहुत सारे ऐसे मतलब आगे आप पढ़िएगा तो आपको आएगा। और तो इसमें जो है पौलुस प्रोत्साहित कर रहे हैं उन लोगों को कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ढांढस बांधो, जो परमेश्वर जिसका मैं हूँ वो हमारे साथ है, ऐसा करके वो वहां पे प्रोत्साहित कर रहा है उनको। और फिर आगे हम 34 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा होता है 33 और 34, जब भोर होने पर थी तो पौलुस ने यह कह के कि सबको भोजन करने को समझाया कि आज 14 दिन हुए हैं कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और भोजन ना किया, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी का सर का बाल भी ना गिरेगा। और यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद करके तोड़कर खाने लगा, और फिर सब ने ढांढस बांधकर भोजन करने लगे, और तब सब भी ढांढस बांधकर भोजन करने लगे। तो मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि देखो कैसे उन्होंने
पौलुस ने प्रोत्साहित किया लोगों को, और लोग हो भी गए। परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें में, और जब बहुत खासकर जब जैसे ऐसी परिस्थितियों में थे कि जब उनको लग रहा था कि हम मर जाएंगे, तब पौलुस ने उनको प्रोत्साहित किया कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हारे सर का बाल भी नहीं गिरेगा। और फिर उनको रोटी खाने के लिए बोला कि आप खाना खा लो, और उसके बाद उन्हें ढांढस बांधकर सबने भोजन किया। 36 वचन तक है ये वचन सारे। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और हम में से हर एक को कभी भी प्रोत्साहित करना छोड़ना नहीं चाहिए, और हम सबको प्रभु प्रोत्साहित करते हैं, और हमें भी एक दूसरे को करना चाहिए। आमीन। Praise the Lord. जैसे अपोस्टल पॉल भी जा रहे थे रोम के लिए, तो पूरा शिप में इतना सारा आंधी आया, तूफान आया, सब लोग वो शिप ही टूटने वाले थे। तो बाद में अपोस्टल पॉल ने सबको प्रोत्साहन दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो जहाज भी डूब गए, अब सब लोग पानी में गिर गए, अपोस्टल पॉल भी पानी में गिर गए, और थोड़ा तैरते 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 वो लोग इस मुसीबत में उनका जान ही बच गया। तो हम लोग सोचते हैं कि अपोस्टल पॉल, इतना महान अपोस्टल पॉल होने के नाते भी फिर भी इतना सारा तकलीफ कैसे प्रभु ने उनके ऊपर डाल दिया। अपोस्टल के पॉल के साथ और कौन थे, लूकोस भी थे जो ये पुस्तक लिखा था, उनको भी तकलीफ झेलना पड़ा, पानी में उड़ा दिया उनको, बोला के पैसे सोच रहे थे कैसे, फिर उनको ढाढ़स कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो हमारे जीवन में कैसे भी आज हमारे जहाज भी हिलेंगे, हमारे घर हिलेंगे, एक हो जाए, लेकिन प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहते हैं देखो, आपका जान का खतरा नहीं करना चाहिए, आपका फ्यूचर के बाद आपका जॉब की टेंशन मत ले लो, आपका हेल्थ के टेंशन में लो, प्रभु संभालेंगे। आप प्रभु के साथ होना चाहिए, प्रभु आपके पास है तो आप एनकरेज रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे, और दूसरों को भी प्रोत्साहन देंगे। आप अगर आपका करेज छोड़ेंगे तो गया डूब गया। जैसे हमारे एक ड्राइवर था हॉस्पिटल में, उन्होंने बोला कि अरे डरेगा तो क्या होगा, मरेगा। इसलिए कई विश्वास डरते हैं, और वो लोग आत्मिक जीवन भी भरते हैं। हमको प्रभु के ऊपर कभी हमेशा विश्वास रखना चाहिए। प्रभु कोई भी प्रॉब्लम होते है, हम लोग कितना तकलीफ से उठा है, प्रभु हमको कभी छोड़ा है कि नहीं। देखो, आई हैव ऑलवेज थॉट माय लाइफ, मेरे इतना सारा मुसीबत में गया था, आप लोग भी गया होगा, कभी प्रभु आपको छोड़ा नहीं, प्रभु का छोड़ा नहीं। प्रभु हमारा परीक्षा लेते हैं कि हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे कि नहीं। तो करेंगे प्रभु जी, हमारा विश्वास और स्ट्रॉन्ग करो प्रभु। मैं जो कुछ भी, अगर सब भी एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब भी खो गया, प्रभु आप ही होना चाहिए मेरे साथ। ये जीवन, ये जिंदगी हमारा नहीं है, हमारा जीवन जिंदगी प्रभु के लिए है और स्वर्ग में है। हम इस मुसाफिर है इधर, प्रभु हमारा फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा सब चीज जो पृथ्वी में है उसके लिए हमको जरूर दे देंगे। हम पृथ्वी के लोग नहीं है, पृथ्वी के लोगों जैसे हमको जीना भी नहीं। हम पृथ्वी के लोग जैसे हम जीते हैं, तभी हमारे जीवन में इस तरह से आंधी तूफान और सब हम निराश होते हैं। प्रभु के ऊपर देखना है, प्रभु के ऊपर नजर करना है, प्रभु का सोचना चाहिए, तो प्रभु की पवित्र आत्मा हमको हमेशा एनकरेज करेंगे। हम पवित्र आत्मा से भरपूरी से हम रहेंगे। We'll be filled with the Holy Spirit. So praise the Lord, brothers and sisters.